So let's go and configure wireless map. All right, this is our endpoint, और इस endpoint में we have the wireless LAN card and the wired LAN card. Wired की भी हमें ज़रूरत नहीं है. I'm disabling it. We are focusing on WLAN. और WLAN के तवसत से we need to connect to the available wireless LAN networks. So we should be able to see wireless LAN in the air. Let me check why we do not have SSID in the air. हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वायरलेस में एक्सेस पॉइंट आ रहे. We do have an access point, and then we have wireless LAN. It is enabled and it is broadcasting. So things are okay from wireless point of view. इसी मशीन में चेक करते हैं. Okay, so we are able to see VLAN 110 SSID. अब ये जो VLAN 110 SSID है, before we connect with this, let's check the IP addresses. Some remote connectivity issue in the machine. तो हमने अपने सिस्टम को एक्सेस कर लिया. After some issues we faced in connectivity and on the host operating system that needed a reboot. Now we can see कि VLAN 110 हमारे पास इस LAN card के ऊपर detected है and we are connected to that. So far nothing is configured in terms of map. This is plain wireless LAN connectivity without any security except the pre-shared key. और हमें VLAN 110 का IP मिल रहा है. इसी तरह का IP हमें wired जो connectivity थी उसमें भी मिल रहा था. So if we connect with VLAN 110, we get IP from 110. If we connect with 120, it is asking for a key. So instead of 120, we stick to 110. And we are able to ping our default gateway, which shows that network layer reachability is there. चलिए इसके ऊपर अब हम मैप enable करते हैं और अभी हम communication को enable रहने देते हैं. Let's go back to the wireless LAN controller. अच्छा जी, wireless LAN controller में जो हमारा target है that is to add the AAA server. So we go in security, then authentication.
here we press new, यहाँ पे हमें 192.168.1.171 our PSN IP वो देना है, shared secret देना है ICT321 star, ICT321 star, and we will turn on change of authorization ability, apply। एक AAA सर्वर हमने ऐड कर दिया। अब हम WLANs में आते हैं, ये वो WLANs हैं जो यहाँ कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। हम इनमें से WLAN 110 में जाते हैं। 110 WLAN में सिक्योरिटी में we have an option of MAC filtering which is right now unchecked. That is the reason कि without any MAC authentication from ISE we are getting connected to the SSID। ISE को भी ओपन कर लेते हैं। So इसको हम इस चेक को इनेबल करेंगे, मैक फिल्टरिंग को अप्लाई। आफ्टर दैट हम AAA सर्वर्स में जाते हैं और यहाँ पे हमें अपना AAA सर्वर मिल रहा है। वी सेलेक्ट इट, अप्लाई। एंड द थर्ड थिंग इज एडवांस में जाके हमें अलाउ करना है AAA से ओवरराइट को, यानी वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आए हमें WLC में अलाउ करना है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, अप्लाई। So with this we have configured the WLC end, and after this configuration you can see that the client is no more able to ping क्योंकि WLAN के ऊपर अब MAC based security enable हो गई है और उस WLAN से हम डिस्कनेक्ट कर दिए गए। अगर इसी WLAN को मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो it is trying to connect, the key is there already configured in this system जिसकी वजह से मैं पहले कनेक्ट हुआ था, but this time despite of the fact मेरे पास वो की मौजूद है, that is there, but I am not able to connect. Reason is I am not getting authenticated by the AAA server so far. तो आइए अब हम ISE के एंड पे देखते हैं हमें क्या करना है। So first of all in network devices we need to ensure कि इस WLC को ऐड किया गया हुआ है और उसके लिए radius enabled है। So WLC is there from our management plane activity time, लेकिन इसके लिए radius enable नहीं है। So let's enable that। ICT321 star is the key, save। ओके उसके बाद अब हम अपने पॉलिसी सेट्स में चलते हैं। पॉलिसी सेट्स के अंदर डिफॉल्ट पॉलिसी सेट में चलते हैं। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में हमारे पास मैब का एक रूल बना हुआ है विच वर्क्स बोथ फॉर वायर्ड एंड वायरलेस एंड इट विल लुक इनटू इंटरनल एंड पॉइंट्स फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। सो दिस इज ओके। उसके बाद हमें ऑथराइजेशन पॉलिसी में जाना है। हमने लास्ट टाइम एक ऑथराइजेशन पॉलिसी बनाई थी और ये ऑथराइजेशन पॉलिसी ये चेक करती थी कि एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप शुड बी ट्रस्टेड मैक्स। अगर ऐसा होगा तो ऑथराइजेशन प्रोफाइल VLAN 10 पुश कर दी जाएगी और ये ऑथराइजेशन प्रोफाइल VLAN 10 आपकी एक्सेस को एक्सेप्ट भी करती है और आपको VLAN 10 एलोकेट भी करती है। जरूरी नहीं है आप VLAN 10 एलोकेट करें, आप उसको एज अ फैंसी फीचर ISE से एनेबल कर रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एक्सेस एक्सेप्ट, दैट इज द मेन पावर ऑफ दिस ऑथराइजेशन प्रोफाइल। बाकी सारी चीजें एक्स्ट्राज हैं जो हमने VLAN पुश कराई थी। ओके सो इसको हमें कुछ बेहतर कर लेना चाहिए और इसके अंदर जस्ट ग्रुप को देखने के साथ साथ हमें एक और कंडीशन ऐड कर लेनी चाहिए और वो ये है कि आने वाला शख्स वायरलेस मैप के जरिए आ रहा हो। दो चीजें देख लेते हैं टू मेक इट मोर स्पेसिफिक कि एक तो ग्रुप जो आने वाले का मैक है वो ग्रुप बिलोंग करता हो ट्रस्टेड मैक और फिर वो वायरलेस से ही आ रहा हो, तो हम ये ऑथराइज कर रहे हैं।
एंड फॉर वायर्ड मैप, अब क्योंकि वायर्ड मैप के लिए ये रूल नहीं चलेगा, ये ऑथराइजेशन नहीं चलेगी, तो वायर्ड वाले लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डुप्लीकेट इट, डुप्लीकेट अबव, और इसका नाम हम रख देते हैं फॉर वायर्ड, इसका नाम हम रख देते हैं फॉर वायरलेस, और इसके अंदर हम वायर्ड मैप चेक कर लेते हैं।